एंटरप्राइज वाइड नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? As we have discussed in the last lecture, ke enterprise wide mean ke a system that is used throughout the organization. So this system is not specific to a specific department, rather this system is for the organization. Whereas knowledge work system is specific to a specific area only. For example, you can say this system is for teachers only. This system is for management only. So that is called knowledge work system. So both are entirely different. One is specific and first one is generic. So enterprise-wide management system, knowledge management system is a system that is a generic system that is used for the organization, not for a specific department or specific area of the job. It that is generically applicable for every employee, for every department, for every area of work. तो हम इसकी डिस्कशन आज स्टार्ट कर रहे हैं कि एंटरप्राइज वाइड नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है. Okay, so first of all, what is enterprise-wide knowledge management system? A system that is general for the organization, that is applicable in all of the organization, throughout the organization, it is without any specific department or specific area of interest. So you can say this system is not specific to some specific employees or some specific department or some specific job. This one is for every employee. This one is for every department. This one is for every job in your organization. So that means that this knowledge management system is a common system for all the employees, for all the departments. Okay, there are three types of knowledge management system, enterprise-wide knowledge management system. First is structured, a system that is used for the structured documents. यानी तीन तरह की नॉलेजेस हैं, ठीक है, जो कि मेंटेन किए जाते हैं. First category is called structured document knowledge, and your knowledge that is within the structured documents. Structured document mean any type of document that has some that is created by using some set of defined rules. For example, reports. Whenever you see some reports, you can see there are some specific columns. There are some specific number of rows in that report. For example, you can say that this is a yearly report. So that means that this report is only for some specific year. You can say this is monthly report. So that means that this report is specific to some month only. And there are fixed columns. And वो जो columns उसमें हैं, for example, the report contain the information about sales, discounts, and mic अपना off कर दें. For example, some report contains information about sales, amount of sales, discount. So every time you can see the report containing sales figure and discount figures. So that's why this type of report is called structured report. A report containing fixed predefined number of columns and data. Presentations जो होती है वो भी structured होती हैं, because के whenever you can see some presentation, those are for specific topic only. किसी खास topic पे बनाई होंगी ना वो presentation. For example, one presentation is for to present some specific product, introducing some specific product. For example, what are the features of that product? What are the characteristics of that product? What are the usage of that product? What are the drawbacks or the limitations of that product? So all things are predefined. Formal rules
यानी आप रूल्स बना देते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि whenever some employee has to pay some salary, there must be some deduction of income tax or some advance tax, sorry. In the same way, there are some uh, rules. For example, in your examination system, we have some rules. If student getting uh, less than 50% marks, his grade definitely will be F. But if the student has highest number of marks in the class, that person has got grade A or A minus. So rules are defined. Those are specific rules. Those are called formal rules. And उसमें किसी किस्म की कोई डेविएशन नहीं है. तो इट मीन कि नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में जो डेटा को मैनेज किया जा रहा होता है, नॉलेज को मैनेज किया जाता है, वो समटाइम स्ट्रक्चर्ड होता है, जो कि इस कैटेगरी में आता है. एंड समटाइम दैट मे बी सेमी स्ट्रक्चर्ड. सेमी स्ट्रक्चर्ड मीन कि जिसमें कुछ चीज़ें तो फिक्स्ड हैं and there are other things which are not fixed, which are, you can say, undefined. For example, emails, videos. In emails you can always say कि email relevant to some specific topic, but way to write that topic and explain that topic is different. For example, अगर मैं आपको मेल करूं कि this email contains your grades, तो ये तो कंफर्म हो गया ग्रेड्स हैं, बट ग्रेड्स को मैंने कैसे डिफाइन किया होगा. हो सकता है कि मैंने उसमें लिख दिया हो कि you obtain this letter grade and you need further hard work. So this further hard work is not a structured thing, that is semi structured. यानी मीन के कुछ चीज़ उसमें स्ट्रक्चर्ड है जहाँ ग्रेड्स की बात हो रही है, लेकिन कुछ उसमें अनस्ट्रक्चर्ड भी डाटा है जिसके बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं कि उसके बारे में टीचर क्या कहना चाह रहा था आपसे कोई पता नहीं है उसके बारे में. वो यानी हार्ड वर्किंग से मतलब क्या है, कितनी हार्ड वर्क होना चाहिए, कितने % होना चाहिए. ये तो कोई चीज़ ऐसी है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते खाली वर्ड से. तो इसमें जब किसी चीज़ को मेजर नहीं किया जा सकता इन अ नंबर ऑफ फिगर्स, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर नहीं है, फिर वो अनस्ट्रक्चर्ड है. तो इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ डेटा ऐसा है ईमेल में जो स्ट्रक्चर्ड भी है और कुछ ऐसा डेटा भी है जो अनस्ट्रक्चर्ड भी है. तो दैट्स व्हाई दिस ईमेल सिस्टम इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड documents. In the same way, unstructured, the third type of knowledge is unstructured, that is tacit knowledge, the knowledge that is inside the brain of workers. Okay, for example, you can say कि how that worker works for on a specific job, and if suppose अगर situation change हो जाती है तो what techniques that person can use to avoid that situation or work in that situation. So this is only the decision based on the situation, and that is not written. वो written नहीं है कहीं पे. That is just inside his brain. तो उसका एकदम से ब्रेन उस काम को रिएक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंगली काम करना शुरू कर देता है. तो दैट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड, जिसके बारे में कोई चीज़ रिटन नहीं है, कोई चीज़ कंफर्म नहीं है. हो सकता है देखें एक उस सिचुएशन में हर वर्कर डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगा. फॉर एग्जांपल अब यू कैन से कि सपोज के आपने प्रोडक्शन का ऑर्डर फुलफिल करना था विद इन 3 days, बट विद इन 3 days वो हो नहीं सका. तो हाउ योर वर्कर्स रिएक्ट ऑन द सिचुएशन, क्या वो जल्दी काम करना शुरू कर देंगे, क्या कुछ उसी स्पीड पे रहेंगे, कुछ लोग उस चीज़ को छोड़ देंगे, शायद जी हम ये इसको नहीं कर सकते. ठीक है, तो देर आर नंबर ऑफ एवरी पर्सन हैज डिफरेंट रिएक्शन ऑन द सेम सिचुएशन. तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड, जिसके बारे में कोई चीज़ डिफाइन नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा. 80% of the organization's business content is semi-structured and unstructured. यानी इसका यानी कि आपका जो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका जो नॉलेज होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए होगा जो कि जिसके थ्रू आप अपनी नॉलेज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकें, मैनेज कर सकें. बिकॉज के अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो होता है वो दैट इज़ नॉट ईजी टू मेंटेन. यानी कि जो नॉलेज आपके ब्रेन्स में है, ह्यूमन ब्रेन्स में है, उसको सिस्टम में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वही तो मेन टास्क है. जो नॉलेज आपके रिपोर्ट्स की फॉर्म में है वो तो बहुत आसान है रिकॉर्ड करना उसको, वो तो इजीली आप उसको नॉलेज
वो एक एक्सट्रैक्ट करके अपने सिस्टम में लेके जा सकते हैं। लेकिन जो अनस्ट्रक्चर्ड को कैसे अंडरस्टैंड करना है, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द टोन ऑफ अ ईमेल। क्या किसी आपके मैनेजर ने आपको ईमेल की है, क्या उसका मूड अच्छा था, बुरा था, क्या वो मूड लाइट मोड में था, किस तरह के मूड में था, ये तो आप नहीं उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते ना उसको। तो इट मीन कि इस किस्म के नॉलेज को कैप्चर करना इज़ मोर डिफ़िकल्ट। तो इसलिए ज़्यादातर जो नॉलेज है वो है ही अनस्ट्रक्चर्ड, वो है ही सेमी स्ट्रक्चर्ड। देखिए हमारे यूएमडी में देखें अगर एग्जांपल लें तो यूएमडी में हम ईमेल्स की बेस पे वर्क कर रहे होते हैं। कभी मुझे ईमेल किसी की आती है, कभी मैं किसी को ईमेल करता हूँ, मैं उनसे उनकी प्रोग्रेस पूछता हूँ या वो मुझसे मेरी प्रोग्रेस पूछते हैं, या स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन करता हूँ, उनके कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। स्टूडेंट को अपनी प्रॉब्लम लिख देता है कि जी मेरे मार्क्स नहीं लगे, ठीक है। तो ये कोई चीज़ डिफाइन नहीं है, ठीक है। अब उसके बारे में वो क्या बताना चाह रहा है, किस किस के मार्क्स नहीं लगे, कितने कम लगे हैं, कितने ज़्यादा लगे हैं, तो ये चीज़ें क्लियर नहीं है। तो ये सेमी स्ट्रक्चर्ड का सिस्टम ही ज़्यादा हो रहा होता है, इसका मतलब है। तो इसका लेके हमें एक एंटरप्राइज वाइड नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होगा, जिसको यूज़ करके हम इस किस्म के अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को मैनेज कर सकें। क्योंकि जो स्ट्रक्चर डेटा है उसको मैनेज करना कोई मुश्किल नहीं है, वो ऑलरेडी आपके एमआईएस सिस्टम में या टीपीएस सिस्टम में मैनेज हुआ है पहले से। उसको तो सिर्फ आपने वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके अपने पास ले आना है। तो दैट इज़ नॉट डिफिकल्ट टास्क, बट द एक्चुअल डिफिकल्टी इज़ विद द सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड नॉलेज। उसको डॉक्यूमेंट करना इज़ अ मेन टास्क। तो यहाँ पे फिर आपका जो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है वर्क करता है सही। जी, एनी क्वेश्चन? नो सर। Okay, what different tasks you can say those are done by uh, enterprise wide knowledge management system? क्या कुछ कर सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो बेसिकली यू कैन से कि ये जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है, कि किस तरह से ये क्या क्या चीज़ें कर सकता है ये सिस्टम। नंबर वन, इट हेल्प कैप्चर, स्टोर, रिट्रीव, डिस्ट्रीब्यूट, प्रिजर्व। यानी कि ये सिस्टम क्या कर सकता है, तो डेफिनेटली ये सिस्टम नॉलेज को कैप्चर कर सकता है, नॉलेज को स्टोर कर सकता है, नॉलेज को रिट्रीव कर सकता है व्हेन एवर यू वांट टू गेट द सिस्टम्स डेटा फ्रॉम, यानी जो हम सेव कर चुके होंगे तो उसमें से कभी दोबारा हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिट्रीव। डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट मीन शेयर दिस नॉलेज टू अदर्स। तो ये सारे काम जो हमने पीछे भी देखे थे कि एक नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो, उसके अंदर सबसे पहला जो टास्क होता है वो नॉलेज को कैप्चर करना होता है, फिर उसको जो है स्टोर करना होता है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो शेयर करना होता है। ये सारी चीज़ें वहाँ भी हम डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। तो जब हम नॉलेज को कैप्चर करेंगे, स्टोर करेंगे, सेव करेंगे, तो वो क्या चीज़ें करेंगे। नंबर वन, डॉक्यूमेंट्स को सेव करेंगे, रिपोर्ट्स को सेव करेंगे। यानी नॉलेज आप कहाँ कहाँ से ले रहे हैं, जहाँ जहाँ से नॉलेज है वहाँ उन चीज़ों को आपने कैप्चर करना और सेव करना है। यानी आप डॉक्यूमेंट सेव करेंगे, आप रिपोर्ट्स को सेव करेंगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डू समथिंग। तो जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हम कुछ चीज़ देखते हैं कि एक दिस इज़ अ गुड वे टू डू समथिंग, तो हम उसको सेव कर लेंगे, तभी तो वो नॉलेज बनेगा ना, तभी तो हम आगे उसको बेहतर करेंगे और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे और बेहतर तरीके से। सेमी स्ट्रक्चर्ड नॉलेज, ईमेल्स, ये तो ऊपर वाला तो आपका स्ट्रक्चर्ड हो गया ना। ईमेल्स को भी सेव करेंगे। अब ईमेल को कैसे सेव करना है, क्या उसको एज इट इज़ सेव कर देना या उसमें से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना है। तो डेफिनेटली हम एक 50 लाइन्स की ईमेल है तो 50 लाइन्स में हो सकता है डेटा तो बहुत थोड़ी सी चीज़ों का होना, तो हम उन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी उसमें से फाइंड करते हैं यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो व्हाट इज़ द टोन ऑफ दिस ईमेल, व्हाट इज़ द मेन कंटेंट ऑफ दिस ईमेल। तो बजाय इसके कि सेविंग ऑल ऑफ 50 लाइन्स ऑफ दैट ईमेल, तो उसमें से हो सकता है 5 लाइन्स ही काफ़ी हों शायद। तो बहरहाल सेव करना है उसको भी हमें। सेकंड जो मेन पॉइंट है वो क्या है, ब्रिंग इन एक्सटर्नल सोर्सेज। यानी आपका जो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है वो सिर्फ नॉलेज इंटरनल सिस्टम के पे बेस नहीं करता।
Your enterprise-wide knowledge management system is a system that is also accessing the external sources, for example, government agencies, NGOs, other organizations of the world, ठीक है, इंटरनेशनल भी हो सकती हैं, लोकल भी हो सकती हैं, टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट टॉपिक, जो हम जिस पे वो ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो वर्क, जैसे हमारी अगर ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन से रेलिवेंट है, तो डेफिनेटली वी नीड टू फाइंड ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द एजुकेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जैसे HEC है, तो HEC इज एक्सटर्नल, तो हमारा जो सिस्टम है वो HEC के साथ कनेक्ट होगा, वहाँ से वो रूल्स फाइंड करेगा, वहाँ से वो मेथड्स फाइंड करेगा जो किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हमें चाहिए होंगे। गवर्नमेंट कोई ऐसे रूल्स बनाती है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए होंगे, तो हम योर नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम मस्ट एबल टू गेट दैट, अक्वायर दैट नॉलेज आल्सो, ठीक है, वो भी इंफॉर्मेशन हमें लेनी है वहाँ से, ठीक है। तो देयर आर नंबर ऑफ वेज those are used to get information from various external sources, and those may be news feeds। अब डिफरेंट जगहों पे न्यूज़ आ रही होती हैं, जैसे कि आपकी डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स हैं, तो वहाँ पे न्यूज़ फीड हो रही होती हैं, तो यू हैव टू access those channels to find the relevant information। Research, तो definitely you need to make a research on the topic कि कौन सी चीज़ें इसमें हो रही है, जैसे हमारे एजुकेशन में क्या, दुनिया में क्या हो रहा है, तो हम वो फाइंड करेंगे, गूगल से फाइंड करेंगे, डिफरेंट जगहों से फाइंड करेंगे, कीवर्ड्स लिखेंगे, मैचिंग कीवर्ड्स लिखेंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज कीवर्ड्स यू विल गेट द इंफॉर्मेशन about those topics you want to find the content। टूल्स फॉर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, तो इस नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे टूल्स भी एम्बेड किए जाएंगे जो कुछ काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वो ये काम कर देंगे। उसमें कोई कम्युनिकेशन के टूल्स हैं, जैसे जूम है, जूम इज़ अ कम्युनिकेशनल टूल, तो डेफिनेटली जब हम इस किस्म के एनवायरनमेंट पे होंगे, देन दैट सिस्टम मस्ट हैज़ सच अ कैपेबिलिटी टू कम्युनिकेट योर डेटा, योर नॉलेज टू अदर्स। Collaboration, okay, this system must able to work in a collaborative environment। For example, there are a number of persons and they want to share same data, they want to work on the same information or data same topic, तो ये कर सकें, तभी तो वो नॉलेज को एक्सपैंड करेंगे ना। यानी आपने एक नया टॉपिक फाइंड किया, तो अगर हम आपस में शेयरिंग एनवायरनमेंट के अंदर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे, तो हम उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी नहीं कर सकेंगे। So these are the tools those must be required for the purpose to collaborate and communicate within the organization by using the knowledge management system। तो इसके लिए ब्लॉग्स बनाए जाते हैं, तो ब्लॉग्स आर द वे टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन। आपने देखा होगा डिफरेंट ब्लॉग्स होते हैं, जो वेबसाइट्स होती हैं जिसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड आउट करते हैं, तो आप बेसिकली दैट इज़ अ वे टू कम्युनिकेट। यानी अगर मैं किसी को बताना चाहता हूँ कि दिस सिस्टम कैन डू ऑल दीज थिंग्स, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, उसके फीचर्स बताऊँगा, एंड दैट फीचर्स आर सबमिटेड ऑन अ स्पेसिफिक वेबसाइट दैट इज कॉल्ड ब्लॉग, फॉर द पर्पज टू शेयर द इन्फॉर्मेशन टू अदर्स, टू द पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, ठीक है, वो दोनों ही हो सकता है। विकीज इज आल्सो अ वे टू send information to a website where you can find the relevant information about that topic, ठीक है, तो उसकी भी एक मैकेनिज्म है, ठीक है, जिसके थ्रू हम इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है हमारा, जिसको एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी कह सकते हैं, वो परफॉर्म करता है। तो ये एक अच्छा, यहाँ पे जो बात हम कर रहे हैं ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी है। You can say this is a specific category or type of knowledge management system that is called enterprise content management, CMS। आपने वर्ड सुना होगा CMS का, content management system। So content management system is a enterprise wide knowledge management system। तो ये एक knowledge management system की टाइप है, एक कैटेगरी है उसकी, तो जिसका पर्पस क्या होता है, नॉलेज को, कंटेंट को मैनेज करना, कंटेंट को अपने पास अरेंज करना। दैट कंटेंट में बी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। तो ये एक उसी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को डायग्राम की फॉर्म में शो किया गया है, ठीक है, कि ये एक यूनिफाइड रिपोजिटरी है इन डेटाबेस है, जिसके अंदर सारा का सारा डेटा है, और वो क्या है, वो उसमें रिपोर्ट्स हैं,
बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, मेमोज हैं, डिजिटल स्लाइड्स हैं, ईमेल्स हैं, ग्राफिक्स हैं, वीडियोस हैं, न्यूज़ फीड्स हैं, विकीज़ हैं, एम्प्लॉय प्रोफाइल्स हैं. Every information is in this database. So when this database is constructed and this is now accessed by every employee of the organization, जितने भी यूज़र हैं, एम्प्लॉयज़ हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, वो इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं फॉर द पर्पस क्रिएट और कैप्चर, टैग, स्टोर एंड रिट्रीव, मैनेज एंड रिव्यू, डिस्ट्रीब्यूट एंड पब्लिश. ये सारे काम हम यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है. नॉलेज, नया नॉलेज क्रिएट करके वो यहाँ सेव कर सकते हैं यूज़र. यहाँ जो जो नॉलेज हमने कैप्चर किया है उसको कैप्चर करके यहाँ डाल सकते हैं. टैग कर सकते हैं. टैग का मतलब है हम उसको स्पेसिफिक कैटेगराइज कर देते हैं स्पेसिफिकली कि फॉर एग्जांपल दिस नॉलेज इज़ रेलिवेंट टू सोशल साइंसेज, दिस नॉलेज इज़ रेलिवेंट टू नेचुरल साइंसेज. तो ये इस तरीके से टैगिंग की जाती है, कैटेगराइज किया जाता है. फिर इस नॉलेज को हम यहाँ पे सेव कर देते हैं या यहाँ से जब कभी हमें ज़रूरत पड़ती है तो रिट्रीव कर लेते हैं. फिर इसको मैनेज किया जा सकता है प्रॉपरली कि ये नॉलेज किस कैटेगरी का है, स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है, किस लेवल का है. रिव्यू कर सकते हैं, इसके ऊपर कमेंट्स लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि ये नॉलेज के ऊपर हमें किस किस्म की रिजर्वेशन है. सपोज डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, नॉलेज को पब्लिश किया जा सकता है बाय यूजिंग विकीज एंड ब्लॉग्स. तो ये आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की एक एग्जांपल है जो हमने डिस्कस किया. ओके, एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने के लिए हमारे पास जो मेन चीज़ होती है वो सबसे पहले हम अपनी जो प्रॉब्लम जिसके जो डेटा की कैटेगरीज हमने इसमें सेव करनी है वो डिफाइन की जाती हैं. ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं डेवलपिंग टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी इन क्लासिफिकेशन, कि हम अपनी क्लासिफिकेशन डिफाइन करते हैं कि हमने किस किस कैटेगरी का डेटा किस तरह से सेव करना है. जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंटेंट मैनेजमेंट डिफरेंट होगा, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम डिफरेंट होगा, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं उनके लिए नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सेपरेट होगा. इन द सेम वे इफ यू कैन से कि इन मेडिकल the content management system is definitely different as compared to education institute, as compared to some trading institutes. तो हमें एक क्लासिफिकेशन का सिस्टम जो है वो डिफाइन करना होता है पहले. दैट इज रेलिवेंट टू योर की प्रॉब्लम, यानी जो आपके टॉपिक से रेलिवेंट है. इसका पर्पस क्या होता है? टू ऑर्गेनाइज इन्फो इनटू मीनिंगफुल कैटेगरीज, ताकि आप अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने नॉलेज को उन कैटेगरीज में डिफाइन कर सकें, अरेंज कर सकें. नॉलेज ऑब्जेक्ट मस्ट बी टैग्ड विद द कैटेगरीज फॉर रिट्रीवल, और फिर आप अपने नॉलेज को उन कैटेगराइज तरीके से ही रिट्रीव कर सकें. जैसे मैंने कहा कि आप उसको कहते हैं दिस नॉलेज इज रेलिवेंट टू सोशल साइंसेज एंड दिस नॉलेज इज रेलिवेंट टू नेचुरल साइंसेज. तो अब मुझे अगर फर्स्ट करें नेचुरल साइंसेज से रेलिवेंट को डेटा चाहिए तो मैं नेचुरल साइंसेज का कीवर्ड पहले सर्च करूंगा ताकि वो मुझे वो सारा डेटा निकल आए जो नेचुरल साइंसेज से रेलिवेंट है. तो अब इस नॉलेज के अंदर सोशल साइंसेज का डेटा नहीं होगा. तो इसका लगे इस तरीके से हम डेटा को रिट्रीव करना आसान हो जाता है हमारे लिए. हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, स्पेसिफिक एरिया को उस नॉलेज से रेलिवेंट जो होगा उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने टैगिंग नहीं की, कैटेगराइज नहीं किया इसको, तो फिर तो बहुत मुश्किल होगा कि इतना ह्यूज सेट ऑफ नॉलेज आपके पास है तो उसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन किस चीज़ से रेलिवेंट है ये तो पता नहीं चलेगा आपको. उसके बाद डिजिटल एसेट मैनेजमेंट सिस्टम. तो बेसिक होता है ये कि जब हम डेटा को, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम उसकी ख़ास तरह से लिस्टिंग करते हैं, यानी कि उसकी नंबरिंग करते हैं. तो जैसे मैं कहूँ कि अगर आपके पास सपोज करें कि आपके ऑफिस में 4 चेयर्स पड़ी हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि चेयर नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है. अब जब कभी भी मुझे उस कहीं चेयर को मुझे रिपेयर के लिए भिजवाना पड़े तो मैं कहूँगा चेयर नंबर 2 को रिपेयर पे भेजा हुआ है, तो मैं उसको मेंशन लिख लूँगा ना कि ये सेकंड नंबर जो चेयर है वो रिपेयर के लिए गई हुई है. तो दिस मेक्स इजी फॉर मी टू मैनेज द एसेट्स. अब यही चीज़ डिजिटल एसेट्स के लिए, अब क्योंकि नॉलेज आपका डिजिटल नॉलेज भी तो एसेट है ना, बट दैट इज़ डिजिटल एसेट. तो उसको मैनेज करने के लिए भी आपको कोई ऐसी किस्म की मैकेनिज्म यूज़ करना होता है कि आप उसको कैसे डॉक्यूमेंट कर सकें, कितना आसान मेथड यूज़ कर सकें उसको फाइंड करने का. जैसे अगर हम कोई नॉलेज सेव करते हैं तो बिफोर दैट जैसे हम कैटेगराइज करते हैं ये सोशल साइंसेज है, ये नेचुरल साइंसेज है, तो हम ये भी लिखेंगे कि दिस इज़ सोशल साइंसेज फॉर ईयर 2020, दिस इज़ सोशल साइंसेज फॉर 2019. तो ये और आसान हो जाएगा कि ये वो टॉपिक है जो 2019 में थे, ये वो टॉपिक है जो 2020 में है.
तो दिस इज अ स्पेशलाइज्ड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर क्लासिफाइंग, स्टोरिंग, मैनेजिंग अनस्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटा। तो इसका मतलब ये कि ये एक ऐसा सिस्टम है, डिजिटल एसेट मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम अपने डेटा को, अपने नॉलेज को क्लास स्पेशलाइज कैटेगरीज में डिफाइन कर रहे होते हैं, ताकि जब हम कभी उस डेटा को रिट्रीव करना चाहें, फाइंड करना चाहें, तो हम आसानी से उसको स्पेसिफिक जगह पे उसको फाइंड कर सकें। तो इसमें नॉर्मली फोटोग्राफ्स भी हो सकती हैं, ग्राफिक्स भी हो सकती हैं, वीडियो भी हो सकती हैं, ऑडियो भी हो सकती है। जैसे कोई वीडियो आती है तो वीडियो को एक नंबर असाइन कर दिया जाता है कि ये वीडियो किस डेट को बनी, किस टाइम को बनाई गई, किस टॉपिक पे बनाई गई, किस कैटेगरी के में बनाई गई। पिक्चर्स जो है किस कैटेगरी की है, किस साइज़ की है, किस टाइम को डेवलप हुई, किस रेलिवेंट टॉपिक से रेलिवेंट है। तो इस तरीके से वो सारे नंबरिंग या टैगिंग उसको कर दी जाती है। जी, अपनी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर अगर आपका कोई क्वेश्चन है, यू मे आस्क। नो सर। ये क्वेश्चन आप समझ भी रहे हैं कि ऐसे ही बस मैं ही बोल रहा हूँ खाली? नहीं सर, समझ रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट another type of enterprise wide knowledge management system is a knowledge network system। यानी ये भी एक पब्लिक सिस्टम है, यानी कि ऐसा सिस्टम दैट इज फॉर एवरी एम्प्लॉय, फॉर एवरी डिपार्टमेंट, फॉर एवरी पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी सिस्टम सबके लिए होगा, दैट इज कॉल्ड एंटरप्राइज वाइड नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस सिस्टम को जो हम कहते हैं नॉलेज नेटवर्क सिस्टम, नेटवर्क मीन ग्रुपिंग। So whenever you have a system just like a Facebook, just like a WhatsApp group, all these are called networks। ये सारे networks हैं। जैसे मेरी क्लास, आपने ग्रुप बनाया हुआ क्लास में, ठीक है, व्हाट्सएप पे, तो दैट इज़ अ नेटवर्क ऑफ योर क्लास। तो मैं इस एक नेटवर्क को यूज़ करके एक मैसेज सब लोगों को सेंड कर सकता हूँ, ठीक है, ताकि वो जो मैसेज है वो पूरे ग्रुप को कम्युनिकेट हो जाए। तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड नेटवर्क सिस्टम। So whenever you have a group of persons working on a same topic, working on a same idea, that is called network system। तो ये अगर नॉलेज को मैनेज करने के लिए बनाया गया है, एक तो होता है ना सिर्फ आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नेटवर्क बना लिया आपने, जैसे व्हाट्सएप तो बेसिकली एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ हो रहा है ना, इस तरह से फेसबुक भी आपका इसी तरह से यूज़ हो रहा है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। लेकिन अगर आप उसको नॉलेज को मैनेज करने के लिए कर लें, नॉलेज को शेयर करने के लिए कर लें, ठीक है, आप उस सिस्टम के थ्रू नॉलेज शेयर कर रहे हो, उस सिस्टम के थ्रू नॉलेज को क्रिएट कर रहे हो, then that system is called knowledge network system। So it is an online directory of corporate experts। तो यू कैन से कि ये एक ऐसा डायरेक्टरी है, एक ऐसा एक ग्रुप ऑफ पर्संस है जो कि कॉर्पोरेट एक्सपर्ट्स हैं, यानी कि जो किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी बिजनेस में काम कर रहे हैं, वो उनके एक्सपर्ट्स हैं, वो ये उनका एक नेटवर्क है। इन साइंटिस्ट का नेटवर्क है, इंजीनियर्स का नेटवर्क है, डॉक्टर्स का नेटवर्क है, टीचर्स का नेटवर्क है, ठीक है। तो वो सारे उस एक एरिया में एक्सपर्ट्स हैं इन वेल डिफाइंड नॉलेज डोमेन्स। यानी इट मीन कि वो स्पेसिफिक डोमेन के लिए होगा, स्पेसिफिक नॉलेज के लिए होगा। ये नहीं होगा कि मतलब आप कहें कि ये एक ऐसा नेटवर्क है जो हर टॉपिक पे बात कर सकते हैं। नो, ऐसा तो नॉलेज शेयरिंग नहीं होती। नॉलेज हमेशा किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे होता है। आप कह सकते हैं कि दिस नेटवर्क इज़ फॉर मेडिकल, this network is for engineering, this network is for communication, business communication। तो इसको हम कहेंगे कि एक ख़ास डोमेन है नॉलेज का, जिसके अंदर वो एक्सपर्ट्स हैं उस ख़ास टॉपिक के रेलिवेंट, जो डिस्कशन करते हैं, जो नॉलेज को या डेटा को शेयर करते हैं। तो इस सिस्टम में कैसे टूल्स अवेलेबल होंगे जो कि आपके एम्प्लॉयज़ को, इन सच टूल्स एनेबल एम्प्लॉयज़ टू फाइंड अप्रोप्रिएट एक्सपर्ट्स इन अ कंपनी। यानी उसमें आप किसी स्पेसिफिक एक्सपर्ट को फाइंड कर सकते हैं। यानी मुझे एक ख़ास टॉपिक के बारे में बात करनी है, एक ख़ास डिजीज़ के बारे में बात करनी है। इफ़ यू आर इन अ नेटवर्क ऑफ डॉक्टर्स, तो आई विल फाइंड अ स्पेसिफिक डॉक्टर फॉर दैट प्रॉब्लम। तो मेरे पास ऐसे सर्च टूल्स होंगे, मैं उसमें से देखूंगा कि कीवर्ड्स लगाऊंगा, टैग लगाऊंगा कि विच पर्सन हैज़ एक्सपर्टी ऑन दिस टॉपिक। तो जाहिर बात है, जब एक बंदा उस नॉलेज नेटवर्क का पार्ट बनता है तो वो डिफाइन करता है
कि व्हाट आर माय एक्सपर्टीज। जैसे लिंक्डइन है, तो लिंक्डइन पे आपने देखा होगा नेटवर्क, लिंक्डइन के जो नेटवर्क्स होते हैं तो उसमें वो एक ख़ास इंडस्ट्री से रिलेवेंट लोग होते हैं या ख़ास टॉपिक से रेलिवेंट लोग होते हैं, तो वो अपनी एक्सपर्टीज़ वहाँ डिफाइन करते हैं कि यू आई हैव एक्सपर्टीज इन फॉलोइंग फील्ड्स, कि आप सपोज कंप्यूटर साइंस से रेलिवेंट है, आप सपोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रेलिवेंट है, ये मेरा टॉपिक है। तो उसी टॉपिक से रेलिवेंट जो लोग होंगे वो उसी नेटवर्क का पार्ट बनते जाएंगे विद द बेस्ट ऑफ टाइम। तो इसके अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं जिसके थ्रू हम अपने कंटेंट को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और कुछ कोलैबोरेशन के भी टूल्स अवेलेबल होते हैं, ताकि जाहिर बात है कोलैबोरेशन नहीं होगी तो ग्रुप ऑलरेडी सिस्टम तो ग्रुप बेस्ड है ना, यानी सब लोग ग्रुप में काम करते हैं, तो वो एक ही वक्त में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, चैट भी कर सकते हैं, वो एक डेटा को आपस में शेयर भी कर सकते हैं आसानी से। तो इस किस्म की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी इस टूल में नॉर्मली अवेलेबल होती हैं। या कुछ कंटेंट को हम मैनेज भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे जैसे हमारे पास नया नया नॉलेज क्रिएट होता जाएगा तो हमारे पास एक रिपोजिटरी बनती जाएगी साथ साथ, जिसके अंदर हम प्रीवियस डेटा को भी फाइंड कर सकते हैं। यानी सपोज कि अगर मैं देखना चाहूँ कि लास्ट ईयर मुझे इस नेटवर्क में किस किस्म की डिस्कशन चल रही थी, तो ये हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कोलैबोरेशन एंड सोशल टूल्स, तो ये भी क्योंकि कोलैबोरेशन एंड सोशल टूल्स जो होते हैं किसी स्पेसिफिक बंदे के लिए नहीं होते, एंड दीज आर फॉर एवरी एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अगर सपोज करें कि मेरे पास एक हमारे पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, तो दिस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज़ नॉट स्पेसिफिक फॉर मी ओनली, not specific to you only. This one is generically available for every teacher and for every student. तो collaboration and social tools जैसे आपकी Zoom है, तो Zoom की मीटिंग, Zoom software is not specific for teacher only. तो that may be used by teachers, that may be used by staff, that may be used by HR department, that may be used by the lower rank employees also, क्योंकि उनको भी sometime, जैसे आजकल तो मीटिंग्स ऑनलाइन चल रही हैं, तो इसका लिए ये टूल जो है सिर्फ एजुकेशन पर्पज से यूज़ नहीं किया जा सकता, इसको आप किसी भी मीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एचआर के इंटरव्यू करने के लिए यूज़ किया जा सकता है इसको। ठीक है, अगर आप एक एम्प्लॉई है जो हायर नया करना चाह रहे हैं और अभी क्योंकि ड्यू टू लॉकडाउन आप उनको मूव नहीं कर सकते वो लोग, तो फिर आप उनका जो इंटरव्यू है वो कैसे करेंगे कंडक्ट, वो फिर आप जूम से कर सकते हैं। तो इसका पर्पज़ क्या होता है, फॉर नॉलेज रिसोर्स आउटसाइड द फर्म। ठीक है, यानी उस रिसोर्स के लिए जो हमारी फर्म का हिस्सा नहीं है, अगर आप उसको कैप्चर करना चाहते हैं, उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो फिर आपको सोशल साइट्स को यूज़ करना पड़ता है ना। तो हमारे पास सोशल बुक मार्किंग, इसे कहते हैं सोशल बुक मार्किंग। So whenever you want to link any resource, knowledge resource that is not part of your organization, that is outside the scope of your organization, यानी जैसे फेसबुक है, तो अगर मैं अपनी फेसबुक के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लिंक कर दूं, तो जो भी डेटा मुझे फेसबुक पे आ रहा होगा, तो वो डेटा तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है वैसे देखा जाए तो, लेकिन मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उसके साथ लिंक करके वो डेटा वहाँ से कैप्चर कर सकता हूँ जो मेरे से रेलिवेंट होता होगा। यानी जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के स्टूडेंट के कमेंट्स होते हैं, जो सजेशंस होती हैं, हम वहीं से लेंगे ना, और उन्हीं सजेशंस को लेके, उन्हीं कमेंट्स को लेके हम बाद में अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड सोशल बुक मार्किंग, यानी कि आप सोशल साइट्स को लिंक करके वो टॉपिक्स फाइंड कर लें, वो रेलिवेंट चीज़ों को फाइंड कर लें जो हमें ज़रूरत है। शेयरिंग एंड टैगिंग बुक मार्क्स विद कीवर्ड्स, यानी आप कीवर्ड्स के साथ अपने कंटेंट को शेयर कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप जब पोस्ट अपलोड करते हैं फेसबुक पे, तो उसमें हैश टैग यूज़ करते हैं, टैग लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ये जो पिक्चर है ये कोई ट्रैवलिंग से रेलिवेंट है, तो हम उसको ट्रैवलिंग का टैग लगा देते हैं। तो जब भी कोई बंदा ट्रैवलिंग का कीवर्ड फाइंड करेगा तो आपकी पिक्चर वहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक ये क्या, ये आपकी इसका ना कि आपने उसको उस पिक्चर को शेयर कर दिया विद दैट टैग। तो स्पेसिफिक कीवर्ड के साथ हम अपनी सोशल साइट्स के डेटा को अरेंज कर देते हैं, और फिर वो उसी तरीके से हमें वो डेटा वहाँ से मिल रहा होता है, फिल्टर हो रहा होता है। इसका पर्पज़ ये भी टू सर्च फॉर टेक्स्ट एंड इमेजेस,
ताकि हम अपनी टेक्स्ट को, अपने इमेजेस को आसानी से सर्च आउट कर सकें। अदरवाइज अगर एक बंदे ने कहानी लिखी है लंबी चौड़ी 50 लाइन्स की, अब उसमें वो किससे रेलिवेंट है वी डोंट नो, लेकिन जब मैं उसको ऊपर टैग लगा दूंगा उसके साथ, तो टैग उसको आसानी से अंडरस्टैंड करेगा कि ये टॉपिक जो है किस चीज़ से रेलिवेंट है। इमेज आप जब अपलोड करते, इमेज में तो टेक्स्ट नहीं होता ना, उसको कैसे पता चलेगा इमेज जो सामने फोटोग्राफ है वो किस चीज़ से रेलिवेंट है? तो वो कैसे पता चलेगा? उसके टैग से पता चलेगा। हम उसके टैग लगा दें, सपोज से कि मेरे पास एक पिक्चर है जिसमें एक रोड एक्सीडेंट को दिखाया गया है, तो मैं वहाँ टैग लगा दूंगा रोड एक्सीडेंट व्हीकल, ठीक है, ठीक है, डैमेज व्हीकल। तो इसमें जब कोई डैमेज व्हीकल फाइंड करे तब भी वो पिक्चर आ सकती है, अगर कोई व्हीकल फाइंड करे तब भी वो पिक्चर आ सकती है, अगर रोड एक्सीडेंट फाइंड करे तब भी वो पिक्चर आ सकती है। तो ये 3 कीवर्ड्स हैं जो उस पिक्चर के साथ एसोसिएट हो गए हैं, जिसके थ्रू हम उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फुक्सोनोमिस क्या होता है कि जो यूज़र आम आपके जैसे फेसबुक में आम जो लोग होते हैं जो उस नेटवर्क का पार्ट होते हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से भी कुछ कैटेगराइजेशन कर देते हैं चीज़ों की, ठीक है। यानी एक तो कैटेगरी वो है जो आपकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने डिफ़ाइन की हुई है, एक वो कैटेगरीज हैं जो कि सोशल उन यूज़र ने डिफ़ाइन की हुई है अपने अपने एक कॉमन कह लो कि जिसको हम कह सकते हैं कि एक आउटसाइड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ कैटेगरीज बनी है ना, वो कैटेगरी जो पब्लिक ने बना दी हैं, यानी पब्लिक आपके उस डेटा को किस खास चीज़ से रिलेट करती है, ठीक है। जैसे आप देखें पॉलिटिशियन के बारे में लोगों के जहन में ख़ास किस्म के वर्ड्स होते हैं, ख़ास किस्म की कैटेगरीज होती हैं जो उन्होंने खुद बनाई होती हैं। अब ये कैटेगरी दिस इज़ नॉट फॉर्मल कैटेगरी, प्रोफेशनल कैटेगरी तो होती नहीं है, लेकिन पब्लिक के जहन में वो चीज़ होती है। तो फिर वो चीज़ें भी हमें अंडरस्टैंड करनी होती है कि जब यूज़र किसी चीज़ को ये ख़ास कैटेगरी में डाल रहा होता है, उसको एक ख़ास वर्ड दे रहा होता है, तो उसकी मीनिंग क्या है? दैट इज़ कॉल्ड फुक्सोनोमीज़। एग्जाम्पल इसमें देखें जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ये डिलीशियस, स्लैश डॉट, पिंटरेस्ट, ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि इस किस्म के डेटा को शेयर करने के लिए आमतौर पे लोग यूज़ करते हैं। तो जब भी कोई बंदा एक पिक्चर अपलोड करता है तो उसको आप अपने तरीके से ख़ास टैग दे देता है कि ये पिक्चर किस चीज़ से रिलेटेड है। ये वही एग्जांपल जो मैंने पिक्चर की आपको बताई है कि जब उसको एक व्हीकल की एक्सटेंट को रोड एक्सटेंट भी लिख देता है, व्हीकल भी लिख देता है, डैमेज व्हीकल भी लिख देता है। तो तो ये मैंने खुद से ही कैटेगराइज़ कर दिया उसको। कैटेगरीज़ कहीं डिफ़ाइन नहीं की हुई थी पहले से। एक तो वो है जो फेसबुक ने डिफ़ाइन कर दी हैं या आपने डिफ़ाइन कर दी हैं, लेकिन एक वो है जो मैं खुद से ही बना रहा हूँ। तो इस तरह से आप पिंटरेस्ट वगैरह पे डिफरेंट पिक्चर्स को डिफरेंट कैटेगरीज बना के खुद से अपनी मर्ज़ी से अपलोड कर सकते हैं। ये देखें एलएमएस भी आ गया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो दिस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एंटरप्राइज वाइड नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम. It provides tools for management, delivery, tracking, and assessment of various types of employees, learning and training. यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हम अपने चीज़ों को, अपने कंटेंट को डिलीवर कर सकते हैं। जैसे स्लाइड्स आपको मिल जाती है, यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट क्या कर रहे हैं। कोई कम्युनिकेट जो जब भी आप इसे एक्सेस करते हैं तो उसी वक्त आपको पता चल जाता है कि किस किस स्टूडेंट ने LMS को एक्सेस किया है और यहाँ से क्या डाउनलोड किया है, ठीक है, ये भी पता चल जाता है। यहाँ से असेसमेंट कर सकते हैं, जब मैं उनको क्विज़ दूंगा या असाइनमेंट दूंगा तो वो अपनी असाइनमेंट अपलोड करेंगे या क्विज़ अपलोड करेंगे तो उनकी वैल्यूएशन वहाँ पे हो जाएगी। तो जो कि हम जिसके थ्रू जिन उन एम्प्लॉइज़ भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, सारी बात एम्प्लॉइज़ को भी ट्रेनिंग करवानी पड़ती हैं, उनको भी वो चीज़ें सिखानी पड़ती हैं, तो उनके लिए भी हो सकता है ये। तो इट्स कॉल्ड मल्टीपल मोड ऑफ लर्निंग, यानी कि यहाँ पे आपको CD-ROM की फैसिलिटी भी हो सकती है। सेम टाइम आप CD डालें तो डाटा एक्सेस कर लें। वेब बेस्ड क्लासेस की, ऑनलाइन क्लासेस की भी ऑप्शन है, ऑनलाइन फोरम्स की ऑप्शन भी होती है, लाइव इंस्ट्रक्शंस यानी लाइव क्लासरूम की भी ऑप्शंस होती हैं। इस तरह बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो जहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं। ऑटोमेट सिलेक्शंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोर्सेज, यानी कि हम चीज़ों को, जो हमारे कोर्सेज होते हैं उनकी हम आसानी से उसको ऑटोमेट कर सकते हैं कि जब भी आप एक बच्चा जो स्टूडेंट है वो पास आउट होगा, सेकेंड सेमेस्टर में जाएगा, तो सेकेंड सेमेस्टर के कोर्सेज उसको ऑटोमेटिकली एलोकेट हो जाएंगे। यानी सेकेंड सेमेस्टर में आपके पास कौन से कोर्सेज हैं, ठीक है, तो वो खुद ब खुद आपके सिस्टम में आ जाएंगे। आप बाद में चाहें उसको
किसी को ड्रॉप कर दें या ना करें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एक बार वो आपके पोर्टल में शो हो जाएंगे। तो इसका कोर्सेज़ को एडमिनिस्ट्रेट करना, मैनेज करना आसान हो जाता है। असेंबल एंड डिलीवर लर्निंग कंटेंट, यानी हम इसके थ्रू अपने कंटेंट को डिलीवर कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, यानी क्विज़ेस बना सकते हैं, असाइनमेंट्स बना सकते हैं, अपने कंटेंट को अपने लर्निंग सिस्टम के जो कंटेंट्स हैं उसको क्रिएट किया जा सकता है। मेजरिंग लर्निंग इफेक्टिवनेस, यानी ये वही है जो असेसमेंट कर रहे हैं कि जब मैं किसी का क्विज़ बनाऊंगा तो फिर मैं उसको देखूंगा कि कितने % लोगों ने क्विज़ दिया, कितने % मार्क्स उन्होंने लिए, तो इससे मुझे ये पता चलेगा कि उनकी लर्निंग कितनी हुई है। ठीक है, उसका सिस्टम, यानी हमारा जो सिस्टम है जो जहाँ से देख के वो चीज़ों को सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये कितना इफेक्टिव है। तो ज़ाहिर है अगर वो हमारे क्वेश्चंस के आंसर सही कर रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स ले रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा जो सिस्टम है लर्निंग का वो सही काम कर रहा है। जी, तो यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट जो कैटेगरी थी जेनेरिक सिस्टम की, दैट इज़ एंटरप्राइज वाइड नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी के जहन में? तो कोई डिस्कशन कर लें, आपको ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन ही करना है, आप कोई इससे रेलिवेंट अगर आपके जहन में बात आ रही है कि ये भी एग्जांपल इसकी हो सकती है, नहीं हो सकती, ऐसी भी बात शेयर कर सकते हैं आप। तो इससे पता चलेगा कि आपकी लर्निंग कितनी है ना। हम ये भी तो एक वे है ना टू फाइंड द कि आपका, आपने जो मुझसे समझा है, जो मैं बात कर रहा हूँ, उसकी कितनी इफेक्टिवनेस आपकी इफेक्टिवनेस है, यानी आपका लर्निंग लेवल क्या है। तो वो डिस्कशन से भी हो सकता है, वो क्वेश्चन से भी हो सकता है। जी, कोई डिस्कशन नहीं करना चाह रहा आप में से? सर वो जो आपने अभी लास्ट क्विज लिया था उसके आपने मार्क्स किसी के भी अपलोड नहीं किए भी, ये करने हैं सबके? नहीं, अभी जो लास्ट क्लास में क्विज हुआ है, नहीं उसके मार्क्स अभी नहीं डाले मैंने। ठीक है सर। सर आपने दो के नाम A1 किया है सर, वो कंफ्यूज हुए हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा कौन सी मिस है कौन सी नहीं मिस। मैंने वो, आप उसको अपडेट करें, मैंने करेक्शन कर दी थी, पहले हुआ था शायद ऐसा, लेकिन अब मैंने उसकी करेक्शन कर दी है। वो A1 सर अभी भी वैसे ही है। वो आपके सिस्टम में फिर अपडेट नहीं हुआ, आप उसको जरा 2-3 रिफ्रेश करके देखें, सही हो जाएगा। सर अब वो हमें याद ही नहीं A1 कौन सी है और कुछ भी नहीं पता। नहीं, वो पता चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। स्टूडेंट्स को पता होता है असाइनमेंट 1 क्या थी, क्विज 1 कब हुआ था, इतना पता होता है। 3-4 महीने की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी स्टूडेंट्स को पता होती है। कि मुझे इतना याद है कि आपकी क्लास में मैंने ये असाइनमेंट दी है या ये क्विज दिया हुआ है या एक्टिविटी मैंने करवाई हुई है। 3-4 महीने की जो होती है ना वर्किंग, वो उसका बंदे के जहन में होता है। ओके, मैंने आपसे कहा था कि डिस्कशन अबाउट द टॉपिक जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप डिस्कशन अबाउट क्विजेज, असाइनमेंट्स एंड मार्क्स करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ नॉलेज वर्क सिस्टम, द सेकंड कैटेगरी ऑफ सिस्टम, and that is a specific to a specific job or specific field only, specific worker only। यानी ये सिस्टम जेनेरिक नहीं है, ये स्पेसिफिक है, ये टू द पॉइंट है, जो किसी खास एरिया को कवर करेगा, किसी खास एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, किसी खास डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, एंड दिस इज नॉट फॉर एवरी एम्प्लॉय। दैट इज कॉल्ड नॉलेज वर्क सिस्टम, अ सिस्टम फॉर नॉलेज वर्कर्स। यानी ये इसका मतलब ये सिस्टम किसके लिए है? नॉलेज वर्कर्स के। नॉलेज वर्कर्स कौन है? इंजीनियर्स हैं, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। नॉलेज वर्कर्स आर रिसर्चर्स, डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स हु क्रिएट नॉलेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यानी वो लोग जो नॉलेज क्रिएट कर रहे होते हैं उन्हें नॉलेज वर्कर कहते हैं। यानी नॉलेज कौन क्रिएट करता है? साइंटिस्ट क्रिएट करता है, इंजीनियर्स क्रिएट करते हैं, टीचर्स क्रिएट करते हैं, रिसर्चर्स क्रिएट करते हैं। तो दोज आर कॉल्ड नॉलेज वर्कर्स। तो दिस सिस्टम इज फॉर नॉलेज वर्कर्स। यानी यहाँ पे पहले वाला सिस्टम सबके लिए था, वो चाहे नॉलेज वर्कर है या नहीं है, वो चाहे बॉस है चाहे आम एम्प्लॉई है, वो सबके लिए था। लेकिन ये सिस्टम जो है सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज वर्कर्स के लिए है। तो दिस सिस्टम इज फॉर नॉलेज वर्कर्स टू हेल्प क्रिएट न्यू नॉलेज। तो ये सिस्टम उनको हेल्प करता है किस में? टू क्रिएट अ न्यू नॉलेज।
टू एंड इंटीग्रेट दैट नॉलेज इनटू बिजनेस, यानी उस नॉलेज को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं और उस नॉलेज को बिजनेस में इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है। यानी जब आप एक नॉलेज क्रिएट कर लेंगे, एक मॉडल आपने नया बना लिया, एक मेथड एक नया डिफाइन कर लिया, सपोज की एक टीचर है, उसने किसी रिसर्च के बाद फाइंड किया कि दिस इज़ अ न्यू मेथड टू टीच, तो अब ये सिस्टम उसको हेल्प करेगा कि इफ़ यू वांट टू इंटीग्रेट और अप्लाई दिस मेथड इन अ करंट सेमेस्टर, तो वो उसको हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? वो आप जब मेजरमेंट टूल्स होंगे डिफरेंट कि आपने इस मेथड को अप्लाई किया, तो बिफोर अप्लाइंग दिस मेथड व्हाट इज द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द लेवल ऑफ लर्निंग ऑफ दो स्टूडेंट्स, एंड आफ्टर अप्लाइंग द मॉडल हम उसको वीकेंड पे, हर वीकेंड पे उसकी प्रोग्रेस देख रहे हैं स्टूडेंट का लेवल क्या था पहले, फिर कितना इम्प्रूव हुआ, फिर कितना इम्प्रूव हुआ। एट द एंड ऑफ सेमेस्टर you can identify that, you can learn that कि what is the total effectiveness of that model। तो अगर ये मॉडल जो है ये पिछले वाले मॉडल से बेहतर परफॉर्मेंस शो किया है, तो then you can easily say that कि your model is effective and now you can apply this model in the throughout the organization। जिसके लिए ये आपका सिस्टम आपको नॉलेज क्रिएट करने में भी हेल्प कर रहा है और आपको नॉलेज को इंटीग्रेट करने में भी हेल्प कर रहा है। अब ये नॉलेज वर्कर के क्या रोल्स हैं, क्या करते हैं काम में? इनके 3 रोल्स हैं। नंबर 1, कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन करंट इन नॉलेज, यानी कि ये वर्कर जो है हमेशा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अप टू डेट रखते हैं, यानी जो चीज़ हो रही है मार्केट में, जो नई चीज़ें आ रही हैं, ये उसके बारे में आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अपडेट करते रहते हैं। यानी किसी जगह पे एक नई रिसर्च हुई, उसी रेलिवेंट टॉपिक पे जो आप काम कर रहे हैं, तो ये वर्कर उस नॉलेज को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, वहाँ से फाइंड करेंगे और देखेंगे और आपको बताएंगे भी देखें ये काम ऑलरेडी, यानी कि ऑलरेडी यहाँ पे होना शुरू हो चुका है। तो इसका कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अप टू डेट रहेगी। सर्व एज इंटरनल कंसल्टेंट रिगार्डिंग देयर एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज, ये एक कंसल्टेंट का रोल भी प्ले करते हैं। यानी आपके जो बाकी लोग होंगे, जो बाकी वर्कर्स होंगे, वो इन लोगों से आके सम टाइम अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, इनसे सोल्यूशन फाइंड करेंगे। यानी एक मशीन है वो ख़राब हो गई है और वो चल नहीं रही, तो वो जो वर्कर उस मशीन को ऑपरेट करता है वो कंसल्टेंसी के लिए आपके पास आएगा, बताए पूछेगा भी ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे सही करें, कोई आपके पास सोल्यूशन है इसका? तो आप उससे सोल्यूशन गाइड कर सकते हैं, बताएंगे उसके बारे में कि इसको कैसे रिपेयर करना है, इसको कैसे सही करना है। तो यू आर जस्ट लाइक अ कंसल्टेंट, यानी दीज वर्कर्स आर जस्ट लाइक अ कंसल्टेंट एक्टिंग एज अ चेंज एजेंट्स। तो ये एक चेंज एजेंट भी होते हैं क्योंकि इनके पास नॉलेज होता है। तो जब जिसके पास नॉलेज होगा वो एक चेंज एजेंट है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेके आ सकता है, वो आपको बता सकता है कि दिस इज़ अ न्यू मेथड टू डू समथिंग, तो इफ़ यू कैन अप्लाई दिस मेथड यू विल गेट मोर प्रोग्रेस इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ों को एवेल्युएट करेंगे, इनिशिएट करेंगे, प्रमोट करेंगे, ठीक है। यानी इन चीज़ों को, इन प्रोजेक्ट्स को जो हम कर रहे होते हैं उनको एवेल्युएट करते हैं कि क्या ये जो हमने यहाँ पे लगाना है इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, अच्छी है या बुरी है। फिर उस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना है, पुशअप करना ना, वो उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये काम करेंगे लोग। फिर उसके लिए प्रमोट करेंगे लोगों को, लोगों के जहन बनाएंगे, लोगों को बताएंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस सिस्टम। तो ये एक तरह का चेंज एजेंट का रोल प्ले कर रहे होते हैं। क्योंकि हमेशा कोई भी एम्प्लॉय हो या कोई भी आपका ओनर भी हो, अगर फ़र्ज़ करें, वो हमेशा उसकी बात सुनेगा जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होगा, जिसके पास ज़्यादा रिसर्च होगी, जिसके पास ज़्यादा डेटा होगा। तो वो किसी आम वर्कर की बात नहीं सुनेगा। लेकिन जो नॉलेज वर्कर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, उनकी बात वो लोग सुनेंगे। उन्हें पता होगा कि ये जो बात कर रहा है दैट इज़ अ सॉलिड। नॉलेज वर्क सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी इस सिस्टम में क्या कुछ होना चाहिए इसके अंदर। यानी कि जब मैं कहूँ कि मुझे एक नॉलेज वर्क सिस्टम चाहिए तो व्हाट मस्ट बी देयर। नंबर 1, सफिशिएंट कंप्यूटिंग पावर फॉर ग्राफिक्स एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। यानी इस सिस्टम के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो ग्राफिक्स को सपोर्ट करे और कॉम्प्लेक्स टाइप की कैलकुलेशंस को सपोर्ट करे। क्योंकि जब आपने नॉलेज को क्रिएट करना है तो आपको वहाँ बहुत सी चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी आपको, तभी आप उस नॉलेज की इफेक्टिवनेस को मेजर कर सकते हैं। पावरफुल ग्राफिक्स एंड एनालिटिकल टूल्स
और इसके अंदर एनालिटिकल टूल्स होने चाहिए ताकि हमारा जो एनालिसिस है वो आसान हो सके। यानी किसी चीज़ की जो इफेक्टिवनेस है उसको एनालाइज करके ही मेजर किया जा सकता है। उसमें परसेंटेज निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, डिफरेंट फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे, फिर पता चलेगा ना ये चीज़ कितनी बेहतर है पिछले वाली से। कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, यानी ये सिस्टम में कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ये सिस्टम के अंदर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आप डॉक्यूमेंट को नॉलेज कहीं से कैप्चर करें तो वो उस डॉक्यूमेंट को अपने पास सेव कर सके कहीं पर, उसको ऑर्गेनाइज कर सकें। एक्सेस टू एक्सटर्नल डेटाबेसेस, तो सारी बात है जब नॉलेज क्रिएट करना है तो नॉलेज हमेशा इंटरनल डेटाबेस पे तो नहीं हो सकता ना। नॉलेज क्रिएट करने के जो नीड टू एक्सेस एक्सटर्नल सोर्सेज आल्सो, तो उनके साथ इनका लिंक होना चाहिए। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, यानी आपका जो सिस्टम है, जो स्क्रीन है, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए उसको, क्योंकि ये साइंटिस्ट तो हैं, नॉलेज वर्कर तो हैं, लेकिन कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं है। ये कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए इनके पास जो सिस्टम होना चाहिए वो ईजी होने चाहिए। ये ना हो कि वो 10 जगह क्लिक करें तो फिर ये काम हो, एक जगह क्लिक करें तो काम होना चाहिए। तो इसलिए उसके इंटरफेस को आसान होना चाहिए, उसको डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। ऑप्टिमाइज फॉर टास्क टू बी परफॉर्म, यानी जिस टास्क के लिए ये सिस्टम बना है, यानी अगर ये सिस्टम किसी मेडिकल की फील्ड के लिए है तो मेडिकल की फील्ड के लिए इसको ऑप्टिमाइज होना चाहिए। अगर ये सिस्टम किसी अकाउंटेंसी के सिस्टम के लिए है तो अकाउंटेंसी के लिए इसको ऑप्टिमाइज होना चाहिए। अगर ये सिस्टम किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए तो एजुकेशन के लिए इसको ऑप्टिमाइज होना चाहिए। यानी इसका मतलब कि ये सिस्टम अपने अपने लेवल की खास ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायर्ड करते हैं। यानी फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है उसको कोई और हार्डवेयर या प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी चाहिए उसको, मेडिकल का जो सिस्टम है उसको डिफरेंट तरह की चाहिए। तो आप ये देखना पड़ेगा आपको कि व्हाट दिस सिस्टम इज़ फॉर, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें इसको ऑप्टिमाइज करना होता है। जी, अबाउट दिस नॉलेज वर्क सिस्टम, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। सर एक्सेस टू एक्सटर्नल डेटाबेस ये क्यों होना चाहिए? जी देखिए ना, आपने एक नया चीज़ बनानी, एक नया नॉलेज एक्सट्रैक्ट करना है आपने, तो क्या नॉलेज आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से मिल जाएगा? क्या आपको रिसर्च करने के लिए आपका जो अपना डेटा है वो काफ़ी है? तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे, आपको आर्टिकल्स देखने पड़ेंगे, आपको इंटरनेशनल लेवल पे जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो क्या कर रही हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा। तो इट मीन कि विदाउट एक्सेसिंग एक्सटर्नल डेटाबेसेस हम नॉलेज क्रिएट नहीं कर सकते नया। ओके सर। जी, एनी अदर क्वेश्चन? क्वेश्चन करने से जो होता है ना आपका टॉपिक ज़्यादा क्लियर हो जाता है आपको, ठीक है। इसलिए बेहतर ये होता है कि आप बजाय कि उस कन्फ्यूजन को अपने माइंड में रहने दें, क्वेश्चन करके उसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे इन्होंने जो क्वेश्चन किया बहुत अच्छा वैलिड क्वेश्चन था कि आपको क्यों ज़रूरत है इसकी एक्सटर्नल डेटाबेस की। तो इसकी वजह यही है कि जो नॉलेज बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए आपको डिफरेंट जगहों से डेटा चाहिए होता है, उनकी बेस पे हम एक नई चीज़ ड्राइव कर सकते हैं। तो ये एक नॉलेज वर्क सिस्टम को एक डायग्राम की फॉर्म में शो किया गया है, ठीक है। कि ये सपोज कर लें कि आपका ये हार्डवेयर सिस्टम है, ये आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम है और ये आपका एक्सटर्नल डेटाबेस है। तो ये एक्सटर्नल डेटाबेस के साथ भी लिंक है और ये हमारा जो इंटरनल सिस्टम है उसके साथ भी लिंक है, और ये सॉफ्टवेयर है जो ग्राफिकली मॉडलिंग वे में किसी भी तरीके से डेटा को यूज़र तक पहुंचाता है। यूज़र इंटरफेस है ये। तो यूज़र यहाँ से फिर इस डेटा को एक्सेस कर लेता है। यानी वो ग्राफिकल भी डेटा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसको विजुलाइज करके भी प्रेजेंट किया जा सकता है, यानी ग्राफिकल फॉर्म में, लाइंस की फॉर्म में, कर्व की फॉर्म में, शेप्स की फॉर्म में वो डेटा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मॉडल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सिमुलेशन की जा सकती है डेटा की, डॉक्यूमेंट को मैनेज करेंगे, यहाँ पे कम्युनिकेशन करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसके अंदर हो सकती हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉलेज वर्क सिस्टम। यानी कि मार्केट में अगर आप देखें तो नॉलेज वर्क सिस्टम एक कैटेगरी है, लेकिन एक्चुअल जो सिस्टम्स के नेम है वो क्या है, वो ये है। जैसे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कैड, ऑटो कैड का वर्ड आपने सुना होगा शायद। ऑटो कैड इज़ अ सॉफ्टवेयर, बट एक्चुअली द सिस्टम नेम इज़ कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि किसी तरह के मॉडल्स को बनाने में यूज़ किया जा सकता है, डिज़ाइन बनाने में यूज़ किया जा सकता है। जैसे व्हीकल को डिज़ाइन करना है तो उस व्हीकल को डिज़ाइन करने के लिए पहले हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो बाय यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर यू कैन डिज़ाइन व्हीकल, उसकी बॉडी डिज़ाइन करना, उसका इंटीरियर डिज़ाइन करना, ठीक है।
तो क्रिएशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस, यानी आर्किटेक्चर डिज़ाइन भी बना सकते हैं। बिल्डिंग है, उसके कितने फ्लोर्स होंगे, उसमें कितना साइज़ होगा रूम्स का, उसमें कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी जाएगी, तो ये सारा डिज़ाइन हम वहाँ पे बना सकते हैं। 3D प्रिंटिंग, यानी आप 3D मॉडल प्रिंट कर सकते हैं। ऐसे प्रिंटर्स अवेलेबल हैं जो 3D शेप्स बनाते हैं, यानी मुझे एक नई चीज़ बनानी है, एक मॉडल बनाना है, एक गाड़ी बनानी है, तो आप उस गाड़ी को कैसा दिखेगी वो गाड़ी, तो वो हम एक प्रिंटर के थ्रू वो मॉडल प्रिंट हो जाएगा, वो गाड़ी एक प्रिंटर से बन जाएगी। फिर वर्चुअल रियलिटी सिस्टम्स होते हैं। वर्चुअल रियलिटी सिस्टम वो होते हैं जो कि किसी भी रियल सिस्टम को वर्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं। यानी सपोज कि अगर मैं आप एक बंदा होता है, वो कहता है मैंने किसी जगह विजिट करना है, सपोज यूनिवर्सिटी का विजिट करना है, तो वो तो फिजिकल विजिट है ना। लेकिन अगर आप उसको उसी यूनिवर्सिटी का विजिट स्क्रीन के थ्रू करवाते हैं, ठीक है, एक सिस्टम के थ्रू करवाते हैं, ऑनलाइन सिस्टम से थ्रू करवाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि दैट इज़ अ वर्चुअल टूर। यानी वो आप दिखा रहे हैं उसको, ये देखें ये रूम है, ये ऑफिस है, ये बिल्डिंग है, ये पार्क है, ये प्ले ग्राउंड है, ठीक है, वो सारी चीज़ें वहाँ उसको जा के दिखा रहे हैं, लेकिन वो घर कंप्यूटर की स्क्रीन पे बैठा हुआ देखें। दैट इज़ कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी सिस्टम, यानी रियलिटी को उसने वर्चुअली देखा है, ये कहना। तो इसमें सिमुलेट रियल लाइफ इन्वायरमेंट, कि हम नॉर्मली ये करते हैं कि रियल लाइफ इन्वायरमेंट को सिमुलेट करते हैं। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल जो है आपकी ये जो मूवी है जुरासिक पार्क, आपने देखी होगी, तो दैट इज़ अ सिमुलेशन ऑफ रियल लाइफ, जो कि वो लाइफ जो आज से 1000 ऑफ ईयर्स पहले थी, उस लाइफ को उन्होंने सिमुलेट करके दिखाया। तो एक वर्चुअल रियलिटी सिस्टम है वो। 3D मेडिकल मॉडलिंग फॉर सर्जन्स, यानी आप एक सर्जन है, उसने हार्ट का ऑपरेट करना है, तो उसको हार्ट एक 3D फॉर्म में वो हार्ट जो है उसके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो वो उस पर रिसर्च कर सकता है, उस पर उसको ऑपरेट करने में हेल्प करेगा, कौन सी वेन किस जगह पे है, अगर उसे एक ब्लेड से कट लगाना है तो वो कट कितना डीप होना चाहिए। तो जब तक उसको 3D इन्वायरमेंट में नहीं देखेगा तो उसको कभी नहीं पता चलेगा कि ये नाइफ जो है या जो कट जो है कितना डीप जाएगा, कितना होना चाहिए। तो अगर आपको सिंपल 2D में शेप नज़र आ रही हो तो वो तो आप एस्टिमेट ही नहीं कर सकते कि वो जो आप नाइफ उसमें प्रेस कर रहे हैं, जो कट लगा रहे हैं, वो कितना डीप लग रहा है। तो इसलिए सर्जन के लिए ये सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑगमेंटेड रियलिटी सिस्टम फॉर एनहांसिंग विजुअलाइजेशन। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है कि आप किसी चीज़ को इतना इन्हांस कर लेते हैं वर्चुअल रियलिटी सिस्टम को कि यू जस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। जैसे आप सपोज करें कि आप सपोज ये ऐसा लगेगा आपको जैसे आपके सामने एक जंगल है एंड यू आर इन दैट जंगल फिजिकली, तो आपके सामने से एनिमल्स गुजर रहे हैं, आप उसमें से गुजर रहे हैं, तो यू जस्ट फील दैट कि एवरीथिंग इज़ रियल एंड यू आर द पार्ट ऑफ दैट इकोसिस्टम आल्सो। वी आर मॉडलिंग लैंग्वेज, वो लैंग्वेज है जो कि यूज़ करके हम इस किस्म के सिस्टम जो होते हैं ना वर्चुअल रियलिटी सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं उनको। तो दिस इज इंटरेक्टिव 3D मॉडलिंग वाया द वेब इंक्लूडिंग एनिमेशन, इमेजेस, ऑडियो सिमुलेट द रियल वर्ल्ड। तो ये एक मॉडलिंग लैंग्वेज है जिसको यूज़ करके हम इस किस्म के रियल टाइम एनवायरनमेंट को सिमुलेट करते हैं। फिर इसके अलावा एक सिस्टम इन्वेस्टमेंट वर्कस्टेशंस है, ये अक्सर आपने देखा होगा आजकल जी ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो कभी जी डॉलर बढ़ रहे हैं, कभी कम हो रहे, करेंसीज बढ़ रही हैं, तो कभी आप, तो दोज आर इन्वेस्टमेंट वर्कस्टेशंस, ठीक है। तो वो भी आपका एक फाइनेंशियल सिस्टम है पूरा, वो आपको एक स्पेसिफिक एरिया की इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसकी फाइनेंशियल डेटा की दे रहा है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, कम हो रही है, करेंसी बढ़ रही है, कम हो रही है, यूज बाय द फाइनेंशियल इंडस्ट्री। ये सिस्टम फाइनेंशियल इंडस्ट्री को यूज़ करना ज़रूरी बात है। Streamline investment process, consolidate internal external data for brokers, traders, portfolio managers। तो आप आपके इन्वेस्टमेंट का क्या मेथड होना चाहिए, कैसे उसको बेहतर करना है आपने, आपके जो वर्कर्स हैं जो उससे रिलेटेड हैं, ब्रोकर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उन्हें अपनी चीज़ को कैसे मैनेज करना है। तो यू कैन सिमुलेट आल्सो। अक्सर आपने देखा होगा जो इस किस्म के जो ऑनलाइन जो वेब बेस्ड ऐप्स हैं ना, वो आपको एक डेमो अकाउंट देती पहले, हम उसमें खुद ही डेमोस्ट्रेट करके चीज़ों को विजुलाइज करके लर्न करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट करूँगा तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट कैसे ग्रो करेगी, अगर लॉस आएगा तो आपको लॉस शो करेगा, प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट शो करेगा, लेकिन वो रियल नहीं है।
वो सिर्फ एक फेक मॉडल के थ्रू आपको दिखाया जा रहा होता है। सो उसका पर्पस क्या होता है कि जब आप रियल टर्म में इसी सिस्टम को अप्लाई करेंगे तो आपको पता हो कि चीज़ें जब फॉल कर रही होती हैं, प्राइसेस जब कम कर रही होती हैं, तो फिर आपको करना क्या है, या प्राइसेस बढ़ रही होती है तो फिर क्या करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आने वाले फ्यूचर में जब आप इस इन्वेस्टमेंट को, इस सिस्टम को फिजिकली यूज़ करेंगे तो वो आपको एक वो गाइडलाइन बन जाएगी आपके लिए। जी स्टूडेंट, तो हमने 2 सेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ तक आज हमने 2 सिस्टम के बारे में, जिसमें एक पहला था एंटरप्राइज वाइड नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम एंड सेकंड था नॉलेज वर्क सिस्टम। एक जेनेरिक है, एक स्पेसिफिक है। तो इन दोनों को हमने डिस्कशन इसकी की है। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को काफ़ी इसमें चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी होंगी, समझ भी आई होगी इसमें। और अगर आप कोई इसमें डिस्कशन करना चाह रहे हैं, कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली यू हैव टू पार्टिसिपेट। जी बताएं कुछ मुझे। हेलो नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। जी, 50 लोगों की क्लास में कोई तो होगा जो मेरी बात सुन रहा होगा। सुन रहे हैं आपकी बात? यस सर। तो कोई बात आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, कोई आप शेयर करना चाहते हैं रेलिवेंट टू बोथ ऑफ दीज सिस्टम्स, यानी अगर आपने कहीं पे इन सिस्टम को रियल एनवायरनमेंट में वर्क करते देखा है, आप उसको या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जैसा चीज़ों को अप्लाई करते हुए देख रहे हैं, तो शायद हो सकता है आप उन चीज़ों को किस तरह से लेते हैं, कैसे समझ आता है कि ये चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं और ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। जी बताएं मुझे। नो सर, क्लियर है। वो सर क्लियर, मैं तो ये पूछा नहीं क्लियर है कि नहीं, मैंने पूछा कि आप क्या इन सिस्टम को आपने किसी वर्किंग एनवायरनमेंट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए इनको यूज़ होते हुए देखा है कि नहीं देखा। नहीं सर, अभी तक तो नहीं देखा। नहीं देखा, तो फिर तो आपको मुझसे सर यूज होते हैं, ये यूज हर जगह होते हैं, लेकिन हमने देखा नहीं कभी। देखा कभी नहीं है। सर ऑटोकैड को देखा हुआ है आर्किटेक्चरल डिजाइन्स में और ब्लूप्रिंट्स में बनाने में। यानी कि आपने ऑटोकैड का, सर एलएमएस हो गया। ऑटोकैड के बारे में आपको काफ़ी आइडिया है। जी सर, एलएमएस का भी है और बाकी वर्चुअल रियलिटी सिस्टम्स भी। वर्चुअल रियलिटी के सिस्टम के बारे में कोई है आइडिया। जी सर, जैसे वो जो वर्चुअल रियलिटी जो ग्लासेस उन्होंने अभी इंट्रोड्यूस की हैं। इन्वेस्टमेंट वर्क स्टेशन के बारे में शायद ये भी आपकी नज़र में गुजरा होगा। ये बहुत सी ऐसी मोबाइल ऐप्स हैं जो कि आपको फैसिलिटेट करती हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद ट्रेडिंग करें, और उसके थ्रू आप इस सर आजकल चली हुई है क्या? तो इस तरह की बहुत सी ऐप्स हैं जिसमें आप कुछ डॉलर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो फिर आप उसमें क्या है वो उनके बारे में मुझे कंफर्म नहीं है कि वो कैसे सही है गलत है, लेकिन वो फाइनेंशियल ऐप्स अवेलेबल हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि एक डेमो अकाउंट भी बन जाता है, तो एकदम से जैसे डेमो अकाउंट क्रिएट करते तो आपके अकाउंट में कोई 10,000 5,000 की अमाउंट आ जाती है, और उसके बाद आप उस अमाउंट को कहीं इन्वेस्ट करें, किसी जगह पे करेंसी में इन्वेस्ट करें, कमोडिटी में इन्वेस्ट करें, तो फिर आप देखते हैं कि वो आपके जो प्रॉफिट्स हैं या इंक्रीज़ हो रहे होते हैं या आपको लॉस हो रहा होता है।
ये जो मैं अभी चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि इसमें से आपने एक छोटी सी असाइनमेंट या एक फाइनल प्रोजेक्ट बनाना है आपने, इसलिए इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा ना अपना फोकस रखें, इनको समझें ज़रा टॉपिक्स को, ये बड़े इम्पोर्टेंट है। और लेक्चर्स जो लास्ट रिकॉर्डिंग है या ये मैं भी अपलोड कर दूंगा फ़र्ज़ करें, तो इसको आप ज़रा लाजमी रिव्यू कीजिएगा, या स्लाइड्स को कम से कम ज़रूर रिव्यू कीजिएगा कि जो टॉपिक्स हैं वो क्या चीज़ मेन आपको गाइड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए नॉलेज सिस्टम का, नॉलेज वर्क सिस्टम का या नॉलेज मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं हो सकती, आगे मूव नहीं कर सकती, जब तक आप उसके अंदर ऐसा सिस्टम डेवलप ना कर लें जो नॉलेज को कलेक्ट करे, नॉलेज के बेस पर रिसर्च करे, तभी आपकी इम्प्रूवमेंट आती है। एंड दिस इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन लोकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसर्च बहुत ज़्यादा होती है। दैट्स वाई दोज ऑर्गेनाइजेशंस विल अर्न मोर प्रॉफिट, बिकॉज के वो नए नए मॉडल्स को, नई चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते रहते हैं। वेरियस जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करती रिसर्च के ऊपर। दैट्स वाई उनकी जो प्रोडक्ट्स होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ऑब्सलीट होती जाती है। हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रीज़ में जो मशीन्स चल रही हैं अभी तक, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में मशीन्स ऐसी यूज़ हो रही हैं जो कि आज से 25 साल 50 साल पहले यूज़ हो रही थी। तो उनका लेवल ऑफ प्रोडक्शन वो नहीं है जो कि एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसमें मशीन वो यूज़ हो रही हैं जो कि आज की एडवांस मशीन है। एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखें कि जो दुनिया है वो जो एक स्पेसिफिक लैंड एरिया है उसमें जो प्रोडक्शन का जो लेवल है पाकिस्तान में बहुत कम है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अमेरिका या दूसरे कंट्रीज़। तो रीज़न क्या है कि इन दोज कंट्रीज़ are using more advanced techniques to harvest or performing the agricultural relevant activities. तो पाकिस्तान में अभी भी वो पुराने सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, पुरानी मशीन्स यूज़ हो रही हैं, तो वहाँ से फिर सिस्टम जो है ना वो इतना इफेक्टिव नहीं है पाकिस्तान में। जैसे अगर आपने किसी लैंड में अगर आपने बीज लगाने हैं तो बीज लगाने का एक ख़ास प्रोसीजर है जो कि पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द केसेस में मोर देन 50% जो बीज वेस्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि आपने जो 50% इन्वेस्टमेंट जो थी वो तो पहले दिन से वेस्ट कर दी ना आपने, ज़ाया हो गई वो। जबकि ये चीज़ जो है अगर आप किसी अमेरिका में देखें किसी जगह पे, तो वहाँ पे जो बीज लगाने का जो मेथड है, जो एडवांस मेथड है, वो इंटायरली डिफरेंट है। तो उसमें वो सीड के वेस्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, यानी कि कोई 90% से ज़्यादा जो सीड्स हैं वो ग्रो करते हैं।